বিজেপি কার্যকর্তাদের উপর তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাসের প্রতিবাদে আজ 21 জুলাই 2024 জগদ্দল থানার সামনে গণতন্ত্র হত্যা দিবস কর্মসূচি পালন করলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। অর্জুন সিংয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে বহু কর্মী সমর্থক বিজেপির জড়ো হয়েছিলেন ভাটপাড়া থানা এবং জগদ্দল থানার সম্মুখে। আপনারা এই খবর দেখুন, ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ডেপুটেশন দিয়েছি ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে। এটা ব্যাপারটা হলো কি, উনি যারা আজকে শহীদ দিবস পালন করেন, কিন্তু শহীদ দিবস আপনি দেখবেন শহীদ হয়েছিল কংগ্রেস ওয়ার্কার, কিন্তু পালন করে টিএমসি। ওইখানে মঞ্চে গিয়ে শুধু বিজেপি গালাগালি করে। শহীদ হয়েছিল কংগ্রেস ওয়ার্কার, পালন করে টিএমসি, আর ওইখানে মঞ্চে গিয়ে বিজেপি গালাগালি করছে। সেটা শহীদ দিবস মানে একটা নোংরা রাজনীতি করেন। যিনি গণতন্ত্রে নিয়ে রাজনীতি করেন, উনি গণতন্ত্রে মানেন না। পুরো ভারতবর্ষ, পুরো বাংলায় জানে উনি যেভাবে বাংলাকে গণতন্ত্রকে ধ্বংসন করছে, বিজেপি এর প্রতিবাদ করছে আর আগেও প্রতিবাদ করছে। নাম আপনার নাম? আমরা নাম অলোক यादव, भाजपा मंडल सेक्रेटरी। আমাদের ছবি দেখাটা কোথায়, অন্য জায়গায় ছিল, চ্যানেলে দেখুন, সব চ্যানেলে সব দেখবে। আমাদের কেউ আমাকে তো কালকে রাত্রে দেখছিল।
আপনারা জানেন যে আজকে অনুষ্ঠানে আমরা উদ্বোধন দেব ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে। আমাদের মঞ্চের উপস্থিত আছেন আমাদের লড়াকুলিয়ার এবং প্রাক্তন সাংসদ আমাদের অর্জুন সিং মহাশয় উপস্থিত আছেন, আমাদের বিধায়ক উপস্থিত আছেন। এই বিধানসভা বিধায়ক জেলারও উনি লোকসভায় জিতেছেন, সেই পবন সিং উপস্থিত আছেন, তাকেও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এবং আমরা চেয়ারম্যান পান্ডের যে লড়াকুলিয়ার তাকেও আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমাদের তারা পর্যদা তাকেও আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনারা শুনুন, প্রথমে আমি বলছি যে এই পোস্টারটা দেখুন, আজকে 21শে জুলাই আমরাও ছিলাম, যে আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমরা 21শে জুলাই অর্জুন সিং আমরা সবাই মিলে 21শে জুলাই সেই আজকের 13টা শহীদ যে হয়েছিল, 13টা আমাদের ভাইরা শহীদ হয়েছিল, তাদের সঙ্গে আমরা গলা মিলিয়ে গিয়েছিলাম। আমরা বেঁচে গেছি, আমরা কিন্তু আমরা মরিনি। তাই আজকে আমরা কি দেখতে পেলাম, বিরাট হাকিম বলছে আজকে পশ্চিমবাংলায় থাকছে, হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছে, তার শাশুড়ি বাঙালি, সে বলছে সব হিন্দুদের এক করে তাদের ইসলাম ধর্মে তাদের স্বামী করছে। আপনারা ভাবুন, আজকে বাংলাদেশে আজকে কত লোক এই আন্দোলন করতে গিয়ে মারা গেছে। আপনারা এই চাকরি যারা মুজিবরের কাজে তারা যারা আপনারা প্রাণ দিয়েছে, তাদের জন্য আজকের 100 কতজন আমি টিভিতে দেখছি, তারা প্রাণ দিয়েছে। আজকে পশ্চিম বাংলায় আজকে কি অবস্থা হয়েছে লোকসভার পরে, আজকে দিকে দিকে পশ্চিম বাংলায় ব্যারাকপুর সাবডিভিশনে আজকে খুন রাহাজানি আজকে সব চলছে। আজকে আমাদের অর্জুন সিং যখন এমপি ছিল, তখন ব্যারাকপুর সাবডিভিশনে আজকে যত সান্তারা জুয়া, যত মদের দোকান সব বন্ধ ছিল। আজকে যখন অর্জুন বাবুকে আজকে আমাদের ঘরের শত্রু আজকে হারিয়েছে, তারা অর্জুন সিংয়ের কাছ থেকে কি জানি সব কিছু নিয়ে তারা আজকে অর্জুন সিংকে হারিয়ে এখন বুঝতে পারছে যে কত ধরনের কত চাপ। তাই আজকে পশ্চিমবাংলা থেকে শুরু করে ব্যারাকপুর সাবডিভিশনে চোর ফ্যাক্টরিকে আজকে 7টা থেকে হিরোইন থেকে সব চলছে আজকে আমাদের জগদ্দল ভাটপাড়ায়। আজকে আপনারা বলুন তো, যে গরিব মানুষদের নাবিকরা উঠে গেছে। আজকে আলুর দাম কত, গরিব মানুষরা খাবে 40 টাকা আলুর দাম হয়ে গেছে, পেঁয়াজের দাম 40 টাকা হয়ে গেছে। আজকে সব জিনিসের সব দাম, মুরগির মাংস কত হয়েছে আপনারা বলবেন না, আপনারা চিন্তা করবেন না। আজকে মিল জুড়ে বসিয়ে দিচ্ছে, আজকে ভাটপাড়া পৌরসভা মিলে বসিয়ে দিচ্ছে। আজকে কেন? তারা অর্জুন সিংকে ভোট দিয়েছে, আজকে এই অবস্থা। আর এখানে যে সাংসদ জিতেছে, সে তো কোনোদিন জিতেনি, সে বলছিল ব্যারাকপুর সাবডিভিশনে গুন্ডারা খবর করবে, আজকে গুন্ডারা গঠন করে হচ্ছে। তাই আমাদের প্রাক্তন সাংসদ আপনাদের সামনে বুঝিয়ে বলবেন, অনেক বক্তব্য আছে। আজকে পশ্চিমবাংলায় হিন্দু মুসলমান করে লাভ হবে না। আজকের আমরা সনাতন ধর্ম আমরা করি, আমরা হরে কৃষ্ণ হরে রাম করি, তাদের ধর্ম তারা করবে, পশ্চিমবাংলায় খাবে আর গাইবে, আপনি বললে সবকিছু করবে, আর পাকিস্তানের ঝান্ডা আর বৃহস্পতির ঝান্ডা এনে পশ্চিমবাংলায় লাফালাফি করবে। এই জিনিস চলতে পারে না। তাই সবাইকে মিলে, সব হিন্দুদের মিলে সব একসঙ্গে লড়াই করতে হবে। আমরা বাংলাদেশ দিয়ে ওপার থেকে চলে এসেছি তাদের জন্য। আজকের এই মুসলমানরা আমাদের মেরে আমাদের জমি জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে দিয়েছে, আবার এই পশ্চিমবাংলায় আমরা সবাইকে বলছি, আপনারা একসাথে লড়াই করুন, একসাথে চলুন, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে থেকে। আজকের মোদী আমাদের মোদীবাবু আছেন, আমাদের কেন্দ্র আছেন, থানায় আমরা বলছি, থানার কিছু অফিসাররা এই তৃণমূলের রাজগিরি করছেন, তারা তৃণমূলের চাকরগিরি করছেন। আপনারা বলছি, আপনাদের তো বাবা মারা আপনাদের লেখাপড়া করেছে, শিখিয়েছে, আপনারা তৃণমূলের চাকরি কেন করছেন? আইনের মতন চলবে, যারা অন্যায় করবে, যারা বিজেপি করে অন্যায় করে, তাকে আপনারা অ্যারেস্ট করুন। আর তৃণমূল তো করছেই, তৃণমূল হেল্প করলে আপনারা ছেড়ে দিচ্ছেন, ধরে নিয়ে এসছেন, আর যখন ছেড়ে দিচ্ছেন জানে না। তাই পুলিশকেও আমরা বলছি, সাবধানে থাকুন,
সারা জীবন তৃণমূল থাকবে না, সিপিএম ছিল, সিপিএম চলে গেছে, তৃণমূল থাকবে না, তৃণমূল চলে যাবে। আবার পশ্চিমবাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টির রাজত্ব আসবেন মানুষ, ভারতীয় জনতা পার্টিকে নিয়ে আসবে পশ্চিমবাংলায়। আমাদের যে লিডার অর্জুন সিং আছে তারই মাধ্যমে আজকে আমাদের ব্যারাকপুরে আমরা নেতৃত্ব দেবো। আমাদের সুরেন্দ্র অধিকারী যে আছেন তার নেতৃত্বে যে কথা বলেছে, সারাভারতী যে কথা বলেছে, আমাদের সুরেন্দ্র অধিকারী সেই কথাই বলেছে। তাই সবাইকে নমস্কার জানিয়ে, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারতের জনতা পার্টি জিন্দাবাদ, অর্জুন সিং জিন্দাবাদ, পবন সিং জিন্দাবাদ। नमस्कार। अब मैं आप लोग के सामने हम लोग के भाजपा के जनप्रिय विधायक माननीय पवन सिंह जी से निवेदन करूंगा, आप लोगों को संबोधित करें। आज आपके सामने हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मी उपस्थित हैं। यहाँ की भाजपा की जनता भी यहाँ हमारे बीच में है। आज ये जो डिप्यूटेशन का जो हम लोग ने मुहिम चालू किया है, ये बंगाल के सभी जगहों पे आज के दिन किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य है जो आए दिन बंगाल में अत्याचार हो रही है रूलिंग पार्टी की तरफ से, आए दिन जो ये अत्याचार हो रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, आप सभी को ये जानने की जरूरत है कि सभी राज्य में चुनाव हुए, सभी राज्यों में शांतिपूर्वक चुनाव हुए, लेकिन यही एक राज्य है जो चुनाव के बाद भी लोग आए दिन परेशान हैं। राजनीतिक तौर पे आप देख सकते हैं कि लोग कुछ भी करने जा रहे हैं तो उनको कार्य करने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। इसीलिए आज मिल में भी वो काम करने जा रहे हैं तो उनको मिल से बैठाया जा रहा है, उनको काम नहीं दिया जा रहा है। काम मिल भी जा रहा है तो उनका अटेंडेंस नहीं हो रहा है। मतलब इस तरह से लोगों को कैसे पीड़ित किया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन को अगर कंप्लेन किया जाए तो पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं करती है, बोलती है ठीक है अच्छा नहीं देखते, पर वो सिर्फ ये बात बोलकर वो साइड ले रही है। वो बोल रही है हम क्या करें, हमारे ऊपर स्टाफ है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि पुलिस प्रशासन आइन को लेकर काम करती है कि एक दल को लेकर काम करना चाहिए, ना कि आइन को लेकर चलना चाहिए। क्योंकि पुलिस प्रशासन से सभी नागरिकों को उसी तरह का विश्वास और उसी तरह का उनसे उम्मीद है, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन ये कार्य को बखूबी से नहीं कर रही है। अपने कार्य के तरफ उसका आए दिन देखते हैं आप आम जनता को पुलिस प्रशासन से कुछ ज्यादा विश्वास नहीं रह गया है। आप आज के समय में अगर आप पुलिस प्रशासन के पास जाइएगा, एक अपना पर्सनल मैटर को भी लेकर पुलिस प्रशासन उसको इम्पोर्टेंस नहीं देती है। वो उसी चीज को इम्पोर्टेंस देती है जो पार्टी से जुड़ा हुआ हो, या रूलिंग पार्टी उनको जिस तरह का ऑर्डर देती है उसी कार्य को वो करती है। तो इस तरह का अगर पुलिस प्रशासन कार्य करेगी तो कुछ दिन के बाद मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन पुलिस स्टेशन ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन और पुलिस आम जनता के लिए होती है, ना ही कि एक दल के लिए होती है। तो इसीलिए पुलिस प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के कार्य ना करें, और जो भी जिस दल के हो अगर वो दल करते हैं तो हर आदमी को अपने बात से रखने का हक होता है, और वो रखते भी हैं। और आपको उनकी बात सुननी भी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए और उस पर कार्य भी करना चाहिए। और इस तरह का कार्य हो नहीं रहा हमारे वेस्ट बंगाल में। तो मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह से आप ऐसे कार्य के ऊपर नजर रखें और इससे जल्द से जल्द ठीक करें। धन्यवाद। मैं आप लोग के सामने हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के लड़ाकू और जुझारू नेता हमारे प्रियंकु पांडे जी से निवेदन करूंगा जो आकर आप लोग को संबोधित करें। भारत माता की, भारत
आज के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी को प्रणाम नमस्कार अभिनंदन करते हुए गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। नमन करता हूं भगवा ध्वज को, जिस भगवा ध्वज के मार्गदर्शन में हम सभी हिंदू अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, उसको जो है नमन एवं हम प्रणाम करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवा ध्वज को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हमारे इस बैरकपुर एवं पश्चिम बंगाल की मिट्टी में लड़ाई करने के लिए हमारे अभिभावक माननीय अर्जुन सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको भी नमन करता हूँ। भाई बंधु, आज आप लोग निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि अचानक आज हम लोग जगतजन थाने के समक्ष आकर थाने घेराव या डेपुटेशन का कार्यक्रम क्यों किए हैं? अरे धोखा चुक होता है। भाई बंधु, आज लड़ाई का वक्त आ चुका है अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान को बचाने का। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जो शासन चल रही है, तालिबान की जो शासन चल रही है, इस शासन के प्रमुख नेता ओपन मंच पर कहते हैं कि वैसे लोगों का जीवन दुर्भाग्यजनक है जिनका जन्म इस्लाम में नहीं हुआ है। भाई बंधु, इस विषय का अर्थ होता है कि जिनका जन्म इस्लाम में नहीं हुआ, जिनका जन्म हिंदू में हुआ है, जिनका जन्म बौद्धिस्ट में हुआ है, जिनका जन्म पारसी में हुआ है, जिनका जन्म जैनी में हुआ है, उनका जन्म दुर्भाग्यजनक है। भाई बंधु, ये दुर्भाग्यजनक कहने का अर्थ है हमारे माता पिता, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, हमारे प्रार्थना की पद्धति के ऊपर चैलेंज करना, उसको आदर करना, उसका सम्मान लेना। भाई बंधु, ये बोलने का अधिकार बिना राजी को किसने दिया? आज वो कहते हैं कि हमारा जन्म दुर्भाग्यजनक है, इसलिए ऐसे लोगों को दावत इस्लाम का निमंत्रण देना चाहिए, उनको इस्लाम के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह उनको जन्नत में ले जाएंगे। भाई बंधु, इसका प्रतिवाद करना जरूरी है। और जब ये विषय बिना राजी कहते हैं तो उसी समय तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी का मुख बंद रहता है और उसके पक्ष में वो अपनी जो शालीनता से साइलेंट होकर के उसका जो समर्थन करती है। भाई बंधु, आप लोग को अगर पता नहीं है तो गूगल में खोल कर देख ले कि बांग्लादेश में क्या कहा जा रहा है, बांग्लादेश के छात्र आंदोलन में क्या बातें कही जा रही है। वहाँ कहा जा रहा है कि যার বাড়ি ভারতবর্ষে আছে, যার মামা বাড়ি ভারতবর্ষে আছে, তারা বাংলা ছাড়ো, না হলে আমরা তাকে ধর্ম পরিবর্তন করাবো। এই আন্দোलन जो है बांग्लादेश में चल रहा है। बंधु, आज हिंदू मुसलमान के ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण किया जा रहा है, हमारे आप के जमीन के, हमारे आप के अपने आप की रक्षा करने की लड़ाई आ चुकी है। राजनीति हम करेंगे, लेकिन यदि हमारा धर्म नहीं बचेगा, हमारी सोच, हमारे संस्कार के ऊपर यदि अटक होगा तो फिर हम राजनीति कहाँ करेंगे? हमें अपने हाथ से होना होगा, हमें एक तो झूठ होकर के उसकी लड़ाई लड़नी होगी। आज इसलिए हम लोग थाने के पास पहुंचे हैं। आज हमारे सुरेंद्र अधिकारी जी भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के शीर्ष नेतृत्व से एवं विधानसभा के विरोधी दल के नेता ने आवाज लगाया कि फिलहाल हाकिम के इस जो उनका स्टेटमेंट है उसके प्रतिवाद में हम लोग जगह जगह जो थाना घेराव करेंगे। आज अर्जुन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग इतनी मजबूत स्तंभ पाए हैं, जिस स्तंभ के नेतृत्व में मुझे विश्वास है कि इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हिंदुत्व को जीतेंगे। भगवान उनको दिया है। आज अर्जुन सिंह जी के नेतृत्व में एक समय तृणमूल कांग्रेस भी सीपीएम में स्टैंड अपना जो है खड़ी कर पाई थी। आज उसी अर्जुन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग विश्वास करते हैं कि आने वाले दिन में पश्चिम बंगाल की मिट्टी से ऐसे तालिबानी शासन चलाने वाले तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हम लोग उठा फेंकेंगे कि हम लोग लेते हैं। आइए बंधु, आज जो चुनाव होता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव है और चुनाव होने के बाद लोगों को ऊपर आक्रमण होता है, चिन्हित किया जाता है कि कौन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कौन जो है हिंदुत्ववादी विचार का व्यक्ति है, उसके ऊपर अटैक किया जाता है, उसके काम को छीना जाता है, उसे बेरोजगार बनाया जाता है,
करने की रणनीति बनाई जाती है। भाई बंधु, इस लड़ाई में यदि हमें बैरकपुर के वासी, यदि पश्चिम बंगाल के वासी सुरक्षित है तो उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी, सुरेंद्र अधिकारी, एमएसपी सिंह जैसे नेतृत्व सामने आकर के हम लोगों को मेहनत कर पाए हैं। इसलिए भाई बंधु, आने वाले दिन में मैं यहाँ से चेतावनी देता हूँ थाने के सभी 70 अधिकारियों को कि आप लोग उसमें से पूर्ण व्यवस्था लीजिए, नहीं तो आगामी दिन यह आंदोलन और भी बड़ा रूप में मुक्त करेंगे और आने वाले दिन में थाने का हित से हित हिला देंगे। आप लोगों को सावधान रहना होगा। आपको अधिकार दिया गया है, आप यदि प्रशासन के जगह पर यदि व्यवस्थित है, बैठे हुए हैं, तो आपका अधिकार है समस्त लोगों के लिए समान रूप से उनके अधिकार की जो लड़ाई को आपको भी आगे बढ़ाना चाहिए। मिथ्या मामला आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे रहे, मिथ्या मामला आप हिंदुत्ववादी विचार वाले लोगों को कर दे रहे, ये कदापि उचित नहीं है। अगर आपको सचमुच सही से चलना है तो कानून की व्यवस्था कानूनी रूप से चलनी चाहिए। आज जिन लोगों को अपने जो है काम से बैठाया गया है उनको यथाशीघ्र आप लोग जो है काम में छोड़ो, उनको लगाए, नहीं तो हम लोग आने वाले दिन में बैठने वाले नहीं है। अर्जुन सिंह जी के नेतृत्व में एवं भाजपा के विधायक पवन सिंह के नेतृत्व में भाजपा में हम लोग उस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। और मैं खुल के कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ, यार हाकिम तुम सुन लो, हम हिंदू है और हिंदू होने पर हमें गर्व है। हम हिंदू है, हमें हिंदू होने पर गर्व है। इस मंत्र के साथ हम लोग चल रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग दूसरे धर्म का आदर नहीं करते, हम लोग दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति हमें हमारे धर्म के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाएगा तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए यदि इस लड़ाई में अपना शहीद अगर शरीर को जीवन को करना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। देश की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए बड़े बड़े जो नौजवान हमारे देश प्रेमी लोग शहीद हो गए। अगर हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए, पश्चिम बंगाल को भारतवर्ष में छोड़े रखने के लिए यदि उस लड़ाई में हम शहीद हो गए तो पीछे नहीं हटेंगे। इस लड़ाई को लड़ेंगे, यही प्रेरणा से करके हमें आने वाले दिन में चलना होगा। और प्रशासन से बार बार एक गुजारिश करूंगा, आज जो है इनक्रोचमेंट के नाम पर, आज इनक्रोचमेंट के नाम पे जिनका जीवन रोड पे दुकान चलाने से चल रहा है, 10 से 20 वर्ष 40 वर्ष से जो लोग अपने रोजगार का साधन अपने दुकान एवं फूट के होटल खाई में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको दुकान को इस तरह से हटाना उचित नहीं है। यदि आपको हटाना है तो उसकी उचित व्यवस्था चाहिए, उसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उसके जो रोजगार का साधन को उपलब्ध करवाना चाहिए, तभी ये इन्फोर्समेंट सही है। अगर आप सचमुच रास्ते को साफ करना चाहते हैं तो उनकी उचित व्यवस्था करिए। हम लोग भी आप लोग के साथ हैं, हमारे नेता अर्जुन सिंह भी आपके साथ है, लेकिन किसी के पेट पे लात मार के इन्फोर्समेंट को हटाया नहीं जा सकता। और यदि इन्फोर्समेंट हटाना है तो फिर जगह देखकर चिन्हित करके इन्फोर्समेंट बंद करिए। ऐसे जगह पर इन्फोर्समेंट को हटाने का लक्ष्य न बनाए जहाँ पे आपको लगता है कि आपके वोटर नहीं है। एक टारगेट करके पूरे पश्चिम बंगाल में इस कार्य को किया जा रहा है। यदि सचमुच हमारे भाजपा जगत पूरे बैरकपुर में यदि इन्फोर्समेंट को हटाना है तो सर्वप्रथम उनके जीवन को जीने के लिए उनकी उचित व्यवस्था होनी जरूरी है। मैं इसी अपील के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा और मैं आप लोग को जरूर कहूंगा भाई बंधु कि हमें ये लड़ाई हमसे उपस्थित होनी है। हमारे नेता अर्जुन सिंह जी हमारे साथ है और इस लड़ाई में हम लोग इस लड़ाई को जीत कर रहेंगे। और पूरा कहता हूँ कि मेरा हाकिम तुम जान लो, हम हिंदू हैं और हमें हिंदू को लेकर गर्व है। भारत माता की, भारत माता की सनातनी धर्म की, सनातनी हिंदुत्व की, अर्जुन सिंह जिंदाबाद, अर्जुन सिंह जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, सुरजगरी जिंदाबाद, सुरजगरी जिंदाबाद। धन्यवाद। চ্যানেল 24টা একটু বার করো, চ্যানেল 24টা। হ্যাঁ ঠিক আছে, থাক থাক থাক, ওইভাবে থাক। বর্দা একটু নিউজ 18টা, বর্দা 7 दिन যাবে বর্দা একটু নিউজ 18টা। আজকে আমাদের
ঠিক আছে মুম্বা, ঠিক আছে মুম্বা সিয়ান, মুম্বা সিয়ান, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে চলে যাচ্ছে, মুম্বা চলে যাচ্ছে। কথাটা বলেছে তাকে ইমিডিয়েট তার নামে এফআইআর করে এফআইআর গ্রহণ করতে হবে আর করে আর তার উপরে অ্যাকশন নিতে হবে, তার উপরে আইন অ্যাকচুয়ালি এই প্রোগ্রামটা তো কংগ্রেসের সময় হয়েছিল। কংগ্রেস এখন উনি হাইটেক করে নিয়েছেন। कांग्रेस को तो निमंत्रण नहीं होगा, इसको फिनिश मार देना। কংগ্রেসকে তো নিমন্ত্রণ, কংগ্রেসকে উনি টুটু জবাব না ফ্রেম উপরে বসে কংগ্রেস পশ্চিমবাংলা পুরোটা বলছি যারা শহীদ হয়েছে তারা কি আসল সম্মান করছে তাদের পরিবার? বললাম তো শহীদের পরিবার তুমি হাতে টানো না, ডেথ সার্টিফিকেটও পাই। শহীদের পরিবার সম্মান করছে না। মানে কার্যত কি আজকের এই সভা জনসভা হচ্ছে হিসাব মতো? উৎসব হচ্ছে। ওটা তো পাগলু ডান্সের জায়গা হয়ে গেছে। 2011 সালে পাগলু ডান্স হয়েছিল, আজকেও আবার পাগলু ডান্স হচ্ছে। মহিলা ব্যানার্জি কি বলছে, অদ্ভুত কথা বলেছে। আর আমাদের কোনো ধর্ম নেই, আমরা মানবতা আমি জানি না মানবতা ধর্ম একদম ঢুকাই দিচ্ছে মমতা ব্যানার্জি যে মানবতা ধর্ম মুখে বললে হয় না, মানবতা ধর্ম পালন করার জন্য মানবতা দেখাতে হয়। উনি কি মানবতা দেখাচ্ছেন? হাজার হাজার মানুষ এখনো ঘর ছাড়া, হাজার হাজার মানুষের বাড়ি লুট হচ্ছে, হাজার হাজার মানুষের মিথ্যা মামলায় ঘর জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ধর্মের কথা বলেছে। খেলা দাও, খেলা দাও, খেলা দাও। মোকাবিলা গণ আন্দোলন গঠিত করতে হবে, সংগঠিत করতে হবে। विराट हाकिम धर्म परिवर्तन के बाद क्या कहेंगे? विराट हाकिम के अगेंस्ट में हम लोग एफआईआर करेंगे, राज्यव्यापी एफआईआर होगा, आज से शुरू होगा। और हिंदू धर्म का जो अपमान करने की बात है उसके खिलाफ एफआईआर होगा। डेपुटेशन था, बोलते जाइए। वो मेन जो होता है 2 पॉइंट पर था। एक है कि जो शहीद दिवस, उसको बीजेपी एक तरह से नूरा राजनीति मानती है, क्योंकि शहीद होने वाला कांग्रेस और शहीद दिवस मनाती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज पूरे बंगाल में थाना के पास एक डिपुटेशन दिया के काम किया गया है। उसका मेन कारण है, 2 कारण है। एक है फिरहाद हकीम जिस तरह से बात बोले हैं, जोर से बोलिएगा। हाँ, फिरहाद हकीम जिस तरह से बात बोले हैं कि जो इस्लाम में धर्म नहीं लिया है वो दुर्भाग्यशाली है। तो मैं पहले फिरहाद हकीम को बोलना चाहता हूँ कि आपकी नेत्री मुख्यमंत्री वो भी हिंदू है, तो क्या वो मुख्यमंत्री दुर्भाग्यशाली है? इस बात को कंडम करते हैं। आपका धर्म, आपका स्वागत, अपना धर्म मानिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप हिंदुओं को दुर्भाग्यशाली बोलें। अगर ये बोले हैं तो एक मेयर पर जिस कुर्सी पर श्री सुभाष चंद्र बोस बैठे थे, उस कुर्सी का अपमान है। अब बंगाल का, बंगालियों लोग का, बंगाल के पूरे जनमानस का एक तरह से अपमान है। और जो उन्होंने बोला है, एक तरह इशारा किया है कि हिंदुओं को कन्वर्ट होकर मुसलमान में आना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। हम लोग को पूरे बंगाल के लोगों को सोचना चाहिए कि उनका जो इंटेंशन था बिल्कुल एकदम गलत, असंवैधानिक रूप से इसका बीजेपी खंडन करता है। अर्जुन सिंह जो वक्तव्य रखा, बहुत अच्छा बात बोले हैं। जो अर्जुन सिंह की बात बोले या जो हमारे जो माननीय नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जो बोले हैं कि जिसका साथ उसका अधिकार, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी के खिलाफ हैं। जिस तरह से टीएमसी वालों ने चुनाव में, अगर आपने देखा होगा, उन्हें बार बार बोला कि जहाँ से हम नहीं जीतेंगे वहाँ हम लक्ष्य भंडार बंद कर देंगे। उनका इंटेंशन क्या था? लेकिन हम वो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जिसका साथ उसका विकास। मेरा नारा है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन जो टीएमसी का जो लाइन है कि जहाँ से हमें वोट मिला वहीं हम अपना मानेंगे, हम ऐसा नहीं मानते। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का जो वक्तव्य है जिसका साथ उसका विकास, इस बात को हम लोग को बीजेपी का कहता समझते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक यादव हुआ, भाजपा मंडल 1 का सेक्रेटरी। आपका नाम? परिषद के और हमारे क्षेत्र के जनप्रिय नेता, मजदूरों के नेता, किसानों के नेता, छात्र नौजवानों के नेता, व्यवसायिक बंधुओं के नेता, औपक भाइयों के नेता, सबके नेता, सब लोग के प्रिय माननीय श्री अर्जुन सिंह जी को मैं मंच पर आने का निवेदन करता हूँ।
भारत माता की भारत माता की आज के भारतीय जनता पार्टी नेता শুভেন্দু অধিকারী দলের পক্ষ থেকে সুকান্ত মজুমদার গণতন্ত্র হত্যা দিবসে নামে এক সপ্তাহ ব্যাপী থানা ঘেরাও, থানা ডেপুটেশন, মানুষের কাছে নিজের কথা বলার জন্য আজকে সময় ঠিক করেছে। আজকে দিনে কেন গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করছি আমরা? 1993 साल में वामफ्रंट के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था। कांग्रेस का जमाना था, नो आइडेंटिटी नो वोट। बंगाल में वामफ्रंट की सरकार थी। उस समय 13 युवकों की हत्या हुई थी। तो क्या हुआ? तो तुम पुलिस ने हत्या किया था। বামফ্রন্টের কথার উপরে খুন হয়েছিল। মমতা ব্যানার্জি সেই দিন থেকে বলে আসছেন कि যখন উনি ক্ষমতায় আসবেন তখন যারা হত্যাকারী আছে পুলিশ, যে সিপিএম এর লোকেদের ইশারায় খুন হয়েছিল, जिन लोगों के इशारे पर हत्या हुई थी, उन लोगों को हम लोग कानूनी रूप से सजा देंगे। सजा देने की तो दूर की बात, जिनके आदेश पर गोली चला था मनीष गुप्ता, उसको ममता बनर्जी ने अपना मंत्रित्व दिया था। ममता बनर्जी ने उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया था। जिन लोगों ने हत्या किया था पुलिस ऑफिसरों को, उन्होंने मेडल दिया था। आज इनकी हत्या हुई, तकरीबन 30 साल होने को आया। हमारे इस क्षेत्र का एक युवक केशव बैरागी, आज तक उसका एक सर्टिफिकेट ममता की सरकार ने नहीं दिया है। उसके बाद भी आज ममता बनर्जी इस कांग्रेस का प्रोग्राम को हाईजेक करके तृणमूल का नाम देके रखती है। इसीलिए जब चुनाव आया, हर चुनाव में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को इस चुनाव में मैनेज करके पैसा देकर पैरामिलिट्री को खरीद कर ममता बनर्जी ने बूथ लूटकर, लोगों के अधिकार को छीनकर और मुसलमानों को बरगलाकर 30% वोट के शुरू करके बेनिफिशियरी वोट से लेकर और उन्होंने बूथ दखल करके ये चुनाव जीता। उसके बाद अपना कंधा अपने थपथपा कर कह रही हैं कि बंगाल में के लोगों ने उनको वोट दिया है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग गए थे राजभवन में, सैकड़ों लोग गए थे राजभवन में और उन्होंने कहा कि हमरा वोट देंगे, हमारे वोट पड़े गए। वहां कहा गया कि हमारे दादा परदादा मरे हुए 20 साल हो गया और इस चुनाव में उनका भी वोट गिर गया। तो भाई, बंगाल के चुनाव में भूत से लेकर, प्रेत से लेकर, स्वर्ग से लेकर हर जगह से आदमी आकर वोट दे देते हैं। और दीदी मुनि, आपकी सरकार अगर इतनी लोकप्रिय है तो आप पश्चिम बंगाल में भोजपुर वायलेंस, जिस तरह से आपके गुंडे, आपके तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म करती है, जिस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार करती है, उसी तरह से
आज पूरे भारतवर्ष में कहीं ये देखने को नहीं मिलेगा। भारतवर्ष में बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे शासन हैं, लेकिन किसी भी राज्य में चुनाव होता है, चुनाव खत्म होता है, उसके बाद जो अपना पार्टी करता है। आज अखिलेश यादव को लाकर मीटिंग कर रही है मंच पर 21 जुलाई का, उनसे पूछिए तो वहाँ जोगी जी की शासन है, वहाँ पर कौन से समाजवादी कार्यकर्ताओं को झूठे मामले में फंसाया जाता है। आप पूछिए तो बिहार में लालू यादव के किस लोगों को झूठे मामले में फंसाया जाता है? नहीं फंसाया जाता है। किसकी नौकरी खाई जाती है? यहाँ नौकरी बचाने के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट का निर्देश आता है, फिर भी बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट या बैरकपुर से लेकर बंगाल के किसी भी पुलिस वाले के ऊपर हाई कोर्ट का भी असर नहीं पड़ता है। आज बहुत सारे म्युनिसिपैलिटी में काम करने वाले लोग को नौकरी से हटा दिया जाता है क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार बीजेपी पार्टी करता है। और कुछ दलाल हैं जो दिन रात बीजेपी की बात करते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं तृणमूल के साथ, जैसे कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस के साथ एडजस्ट करके, कांग्रेस सीपीएम के साथ एडजस्ट करके चलती थी, वैसे कुछ लोग हैं। और उन लोगों को बहाल तबियत से नौकरी से कोई असुविधा नहीं, उनको कोई असुविधा नहीं है। लेकिन जो लोग प्रसिद्ध आकार में इस देश में, इस राज्य में बीजेपी के झंडा लहरा रहे हैं, आज 39% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है और सिर्फ 5% का धक्का लगाना है। और हमारे नेता ने कहा है कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, हम उसके साथ रहेंगे। ये कौन सा गलत काम है? जो हमारे साथ है उसके साथ हम हैं। ममता बनर्जी की तरह तो शुभेंदु अधिकारी ने नहीं कहा है। ममता बनर्जी क्या कहती है? जो गाय दूध देता है उसका भी लाभ सहन होगा। अरे ममता बनर्जी जी, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका एक मंत्री बोलता है कि जिस आदमी का जन्म इस्लाम धर्म में हुआ है वो सौभाग्यशाली है, जिसका धर्म इस्लाम धर्म में नहीं हुआ है वो अभागा है, उसका जन्म जो है वो मृका है। उस आदमी का नाम है फिराद हाकिम। वो आज भी आपके मंच पर खड़ा होकर भाषण दे रहा है और आप बंगाल के मुख्यमंत्री होकर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप राजनीति करते हैं, आप संविधान का शपथ लेती हैं, आप संविधान को सामने रखकर शपथ लिया है आपने। भारतवर्ष में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है, हिंदू है और भारत का नागरिक है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ, जो सबका विकास की बात करते हैं, आज 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, वहाँ क्या किसी धर्म जात को देख कर दिया जाता है? नहीं दिया जाता, सबको दिया जाता है। आज जो घर बनता है वो सबको दिया जाता है। ये बात अलग है कि हमारे मुसलमान भाइयों को ये दिमाग में ठूस दिया गया है कि मोदी जो है, मोदी से जितना लेना है लो, लेकिन मोदी को वोट मत दो, मोदी तुम्हारा दुश्मन है। और उन लोगों को पता नहीं कौन दिमाग में समझा देता है कि ऐसे कार्यों में वो विश्वास करते हैं। अरे विश्वास करके आइए, देखिए, एकमात्र इस देश को अगर कोई आदमी आगे बढ़ा सकता है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अदरवाइज दूसरा कोई आदमी नहीं हो सकता है। और उसके लिए तरह तरह की बातें होती है। तो हमारे शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा वो सही कहा है कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ है। राजनीति में यही कही जाती है। आज यहाँ पर पूरे बैरकपुर छोड़िए, पूरे बंगाल की मैं बात करता हूँ, आए दिन शूट आउट, आए दिन डकैती, आए दिन छिनतई, आए दिन खून खराबी। अभी बैरकपुर की बात अगर कहें तो धन्यवाद दूंगा पुलिस वालों को भाई, ये जितने शराब की दुकानें बंद थी इलीगल, जितना जुआ, जितना लोटो बंद था, सब आपने चालू कर दिया। आपको तो फूल देना चाहिए कि आप इस समाज को बिगाड़ने का काम ममता बनर्जी के इशारे पर आपने पूरे दम से शुरू किया है। लूट मचा हुआ है, चाहे वो कचरा पड़ा चले जाइए, चाहे आज नईहट्टी चले जाइए, चाहे वो भाटपड़ा की बात कहिए। अब मोमिन पड़ा में 2 दिन पहले
बम बनाते हुए फट गया। उसको कहानी देने की कोशिश की क्या की जा रही है कि बम मारा गया है। अरे 2 आदमी को बम लगा है बनाते बनाते। अरे बेवकूफो, तुमको पता नहीं है, रिकॉर्ड खोल के देखो। यहाँ एक एसडीपीओ हुआ करते थे कनाड मुखर्जी, उनका लैपटॉप उनके घर से चोरी करके लेके भाग के आया था। बाद में उसको हम ही लोगों ने पकड़ के दिया था पुलिस में, और वो आदमी आज आपका एजेंट बना हुआ है क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस करता है, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेके घूमता है। ये तो आपकी पार्टी है, ये तो आपकी सरकार चल रही है। पुलिस वाले तमाशाबीन बने हुए हैं। अरे भाई, दलाली करने का एक सीमा होता है। करो, कम करो, थोड़ा लज्जा होना चाहिए। तुमको भी टीए नहीं मिलता है, तुमको भी टीए नहीं मिलता है, तुम्हारे बच्चों को भी नौकरी नहीं मिलेगी। 1000 টাকাতে পশ্চিম বাংলায় ভোট বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তো লজ্জার ব্যাপার নেই? আপনার ছেলে কালকে চাকরি পাবে কি না পাবে এর কোনো চিন্তা নেই আপনার? আপনার ছেলে 1000 টাকাতে বিক্রি হয়ে গেছে আপনার ভোট। আপনি মা হয়ে আপনার কোনো দায়িত্ব নেই যে আপনি 1000 টাকা নিয়ে আপনার যে ভোটের অধিকার বিক্রি করে দিচ্ছেন? এটা আপনার লজ্জা হওয়া উচিত। বাংলার মানুষ আজকে দেখছি একটা 21 জুলাই নিয়ে মনে হচ্ছে উৎসব হচ্ছে। আরে 21 জুলাই শহীদের দিন, সেখানে আপনি উৎসব মানাচ্ছেন। এলাই খাওয়া চলছে, এলাই নাচ গান চলছে, এলাই বাবু ডান্স হচ্ছে, এলাই মমতা ব্যানার্জি ভাইপো আজকে মিটিং এ বলেছে, কয়রা ব্যানার্জি জানেন কি বলেছে? বলেছে কোন ধর্ম নেই, একমাত্র ধর্ম আছে মানবতা। লজ্জা হয়ে অভিষেক বাবু, আপনি মানবতা ধর্মের পালন করে বাংলায় যে মানুষ আপনাকে প্রতিবাদ করেছিল ওই গাড়িতে একটা মিটিংয়ে কাঁদিতে আপনি তার খুন করিয়ে দিয়েছিলেন। আরে আজকে দিন বাংলায় ক্ষমতায় আসতে ভারতীয় জনতা পার্টি আপনার থেকে হিসাব নেওয়া হবে। আপনি ঘাবড়াবেন না, পালাবার কোনো পথ নেই। আপনি কি ভাবছেন নরওয়েতে, ইংল্যান্ডে, ব্যাংককে, সিঙ্গাপুরে, দুবাইতে অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে, টাকা ফেরত আসবে না? সব টাকা ফেরত আসবে। আপনার ঘাবড়াবার কোনো প্রশ্ন নেই, ঘাবড়াবার কোনো সময় এই অবকাশ নেই। আসবে, সব টাকা আমরা ফেরত নিয়ে আসবো, সব টাকা ফেরত নিয়ে আসবো। আজকে পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমরা বলতে আসছি, আপনারা ভাববেন না যে ভাটপাড়ায়, ব্যারাকপুরে, পশ্চিমবাংলায় বিজেপি মরে গেছে। এটা ভাববেন না। মাত্র 40 লাখ ভোট কম পেয়েছি আমরা, এটাও ভোট কম পাইনি। আপনার মতন দালালরা তৃণমূল কংগ্রেস হয়ে বুথে রিডিং করিয়েছে, তার জন্য আমরা এই ভোটটা পাইনি। কিন্তু মানুষ যখন জেগে যায়, তখন দেখছেন তো উড়িষ্যায় কি হয়েছিল। কেউ ভাবছিল উড়িষ্যায় পরিবর্তন হবে? কেউ ভাবছিল 2011 সালে সিপিএম চলে যাবে? আজকে দেখুন তো বাংলাদেশে কি হচ্ছে। বাংলাদেশে যারা রিজার্ভেশন পেয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ির লোকেরা চাকরি পাবে। সেই রিজার্ভেশনের বিরুদ্ধে আইএসআইএস নেতৃত্বে ওখানে একটা আন্দোলন চলছে ওখানকার সরকারের বিরুদ্ধে। স্লোগান কি হচ্ছে? যার মামা বাড়ি ভারত, ভারত যার মামা বাড়ি, বাংলা ছাড়ো তাড়াতাড়ি। ভাবুন তো, কোথায় কি বাংলাদেশ? ইসলামিক কান্ট্রি, সেখানে কিসের আন্দোলন? বলছে ভারত, ভারত চলে যাও, ভারতে চলে যাও। লজ্জা হয় না? লজ্জা হয় না? আজ যারা বাংলাদেশ থেকে যে হিন্দুরা এসছে, আপনারা ভাবছেন না আজ 5%, 2% যারাই আছে আপনাদেরকে ভারতবর্ষে আসতে হবে। আপনাকে যদি ভারতবর্ষের নাগরিকতা নিতে হয় তাহলে ভারতবর্ষে আবেদন করতে হবে যে সিএ আইনের উপরে আপনার নাগরিকতা পাওয়া যাবে। সেই আইনের মমতা ব্যানার্জি বিরোধিতা করছে। তার মানে মমতা ব্যানার্জি হলো ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজের একমাত্র বিরোধী। সেই বিরোধী মমতা ব্যানার্জিকে হিন্দু যাতে একটা ভোট
না দিতে পারে। কেন আমরা দেখেছি কোন মুসলিম ভাইদেরকে আমরা যত চেষ্টা করে যাই, মোদীজি যত চেষ্টা করে যান ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য, তারা মোদীজিকে নিজের শত্রু ভাবছে। আমি জানি না কালকে হয়তো জ্ঞান ফিরতে পারে, তারা হয়তো মোদীজিকে সমর্থন করতে পারে, সমর্থন করলে আমরা ওয়েলকাম জানাবো। কিন্তু যারা আজকে যেভাবে ডেমোক্রেসি চেঞ্জ হচ্ছে, যেভাবে পশ্চিমবাংলা সমস্ত বর্ডার এলাকা থেকে 65টা বিধানসভা থেকে পলায়ন শুরু হয়ে গেছে, আপনার আসাম থেকে পলায়ন শুরু হয়ে গেছে, ঝাড়খণ্ড থেকে পলায়ন শুরু হয়ে গেছে, আপনাদেরকে সজাগ থাকতে হবে। আপনাকে নিজের অধিকার বেছে নিতে হবে, নালে বাংলায় থাকতে পারবেন না। আমরা হয়তো 2 দিন 4 দিন লড়াই লড়বো, 10 দিন লড়াই লড়তে পারবো, কিন্তু বাংলার হিন্দু বাঙালিরা 1 ঘন্টা লড়াই লড়তে পারবে না। এই কথা বলে আমি বলছি আমরা গর্বিত, আমরা হিন্দু। ববি হাকিম, তুমি তোমার বাবা হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছিল, তুমি হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছো, তুমি ইসলাম ধর্ম বানাও, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম পরিবর্তন করা তোমার কোনো অধিকার নেই, হিন্দুদের ব্যাপারে তোমার বলার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু তুমি একটা হিন্দুর মা পেট থেকে জন্মেছো, তুমি হিন্দু বিরোধী কথা বলতে পারো না। এই কথা বলে শিক্ষার আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ভারত মাতাকে চ্যানেল 24টা একটু বার করো, চ্যানেল 24টা। হ্যাঁ ঠিক আছে, থাক থাক থাক, ওইভাবে থাক। বর্দা একটু নিউজ 18টা, বর্দা 7 দিন যাবে বর্দা একটু নিউজ 18টা। ঠিক আছে বুম্বা, ঠিক আছে বুম্বা সিয়ান, বুম্বা সিয়ান, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, চলে যাচ্ছে বুম্বা, চলে যাচ্ছে। কথাটা বলেছে তাকে ইমিডিয়েট তার নামে এফআইআর করে এফআইআর গ্রহণ করতে হবে, আর করে আর তার উপরে অ্যাকশন নিতে হবে, তার উপরে আইন অ্যাকচুয়ালি এই প্রোগ্রামটা তো কংগ্রেসের সময় হয়েছিল, কংগ্রেস এখন উনি হাইজ্যাক করে নিয়েছেন। কংগ্রেসকে তো নিমন্ত্রণ ফিনিশ মার দেনা, কংগ্রেসকে তো নিমন্ত্রণ, কংগ্রেসকে উনি টুটুল জগন্নাথ ফ্রেম উপরে বসে কংগ্রেস পশ্চিমবাংলার পুরোপাটা বলছি, যারা শহীদ হয়েছে তারা কি আসল সম্মান করছে তাদের পরিবার? নিউজ 18 চ্যানেল বললাম তো, শহীদের পরিবার তুমি হাতে টানো না, ডেথ সার্টিফিকেটও পাই, শহীদের পরিবার সম্মান করছে। মানে কার্যত কি আজকের এই সভা জনসভা হচ্ছে হিসাব মতো? উৎসব মনে হচ্ছে, উৎসব হচ্ছে। ওটা তো পাগলু ডান্সের জায়গা হয়ে গেছে। 2011 সালে পাগলু ডান্স হয়েছিল, আজকেও আবার পাগলু ডান্স হচ্ছে। মহিলা ব্যানার্জি কি বলছে, অদ্ভুত কথা বলেছে। আর আমাদের কোনো ধর্ম নেই, আমরা মানবতা আছে। আমি জানি না মানবতা ধর্ম একদম ঢুকাই দিচ্ছে মমতা ব্যানার্জি, যে মানবতা ধর্ম মুখে বললে হয় না, মানবতা ধর্ম পালন করার জন্য মানবতা দেখাতে হয়। উনি কি মানবতা দেখাচ্ছেন? হাজার হাজার মানুষ এখনো ঘর ছাড়া, হাজার হাজার মানুষের বাড়ি লুট হচ্ছে, হাজার হাজার মানুষের মিথ্যা মামলায় জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ধর্মের কথা বলেছে, খেলা দাও, খেলা দাও, খেলা দাও। মোকাবিলা গণ আন্দোলন গঠিত করতে হবে, সংগঠিत করতে হবে। विराट हाकिम धर्म परिवर्तन के बाद क्या कहेंगे? विराट हाकिम के अगेंस्ट में हम लोग एफआईआर करेंगे, राज्यव्यापी एफआईआर होगा, आज से शुरू होगा। और हिंदू धर्म का जो अपमान करने की बात है उसके खिलाफ एफआईआर होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज पूरे बंगाल में थाना के पास एक डिपुटेशन दिया के काम किया गया है। उसका मेन कारण है, 2 कारण है। एक है फिरहाद हकीम जिस तरह से बात बोले हैं, जोर से बोलिएगा। हाँ, फिरहाद हकीम जिस तरह से बात बोले हैं कि जो इस्लाम में धर्म नहीं लिया है वो दुर्भाग्यशाली है। तो मैं पहले फिरहाद हकीम को बोलना चाहता हूँ कि आपकी नेत्री मुख्यमंत्री वो भी हिंदू है, तो क्या वो मुख्यमंत्री दुर्भाग्यशाली है? इस बात को कंडम करते हैं। आपका धर्म, आपका स्वागत, अपना धर्म मानिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप हिंदुओं को दुर्भाग्यशाली बोलें। अगर ये बोले हैं तो एक मेयर पर
जिस कुर्सी पर श्री सुभाष चंद्र बोस बैठे थे उस कुर्सी का अपमान है। अब बंगाल का बंगालियों लोग का, बंगाल के पूरे जनमानस का एक तरह अपमान है। और जो उन्होंने बोला है, एक तरह इशारा किया है कि हिंदुओं को कन्वर्ट होकर मुसलमान में आना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। हम लोग को पूरे बंगाल के लोगों को सोचना चाहिए कि उनका जो इंटेंशन था बिल्कुल एकदम गलत, असंवैधानिक रूप से इसका बीजेपी खंडन करता है। अर्जुन सिंह जो वक्तव्य बहुत अच्छा बात बोले हैं, जो अर्जुन सिंह की बात बोले, या जो हमारे जो माननीय नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जो बोले हैं कि जिसका साथ उसका विकास, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी के खिलाफ हैं। जिस तरह से टीएमसी वालों ने चुनाव में, अगर आपने देखा होगा, उन्हें बार बार बोला कि जहाँ से हम नहीं जीतेंगे वहाँ हम लक्ष्य भंडार बंद कर देंगे। उनका इंटेंशन क्या था, लेकिन हम वो नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं जिसका साथ उसका विकास। मेरा नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो टीएमसी का जो लाइन है कि जहाँ से हमें वोट मिला वहीं हम अपना मानेंगे, हम ऐसा नहीं मानते। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का जो वक्तव्य है जिसका साथ उसका विकास, इस बात को हम लोग पूरे बीजेपी का करता समझते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक यादव हुआ, भाजपा मंडल 1 का सेक्रेटरी। आपका नाम? रतन साहब।